Hi, my name is Satyanarayan, and I'm one of the co founders and directors of IQ Ideas Private Limited. We prepare students for various examinations, including law, business management, hotel management, mass communication, liberal studies, and so on and so forth. I've been appearing for the CLAT, the Common Law Admission Test, myself since 2015 and have cracked it every year, 5 times consecutively. So, this video is intended for those students who aspire to get into the profession of law through the route of national universities and other institutes which grant admission on the basis of entrance examinations such as the common law admission test. So if you're a 2021 2022 aspirant of exams, especially the CLAT, then this video is an endeavor to give you idea of how to go about the preparation for all these examinations. So obviously the first thing that you should be doing is you should know the sections of the examination, right? Whenever you're preparing for any examination, the first thing that you should know is what the examination is all about, what to expect in this examination, right? So till 2019, the CLAT used to be a 200 mark multiple choice questions paper divided across 5 sections to be attempted in 2 hours. In the end of 2019, the CLAT consortium, it decided to make this paper easy, and they thought that reducing the number of questions will make the paper easy. So 2020 edition became a 150 mark paper, the same 5 sections and the same 2 hours. So they thought that reducing it by 25% will make it somewhat easier for the students. The type of questions drastically changed, right? The way it was asked previously is till 2019. It changed very drastically in 2020. And obviously, because of global conditions, it was an unusual paper. We would not call it a regular paper. So, this particular video will give you a general idea of preparation, right? It is not exclusively on the basis of CLAT 2020, but it gives you a basic idea of how to go about your overall preparation. So, the first section, राइट दैट वी फोकस ऑन इज इंग्लिश. अंग्रेजी का जो सेक्शन होता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ पीपल विल आस्क मी व्हाट इज द सिलेबस. सो गाइस अंडरस्टैंड, एंट्रेंस एग्जाम्स में अगर आप सिलेबस को देख के प्रिपेयर करते हो तो आप लिमिटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? सिलेबस को मत देखो, फंडामेंटल्स सीखो. ये जानो कि हर सब्जेक्ट में फंडामेंटली आपको क्या जानना जरूरी है. अगर आपके फंडे तेज हो गए, अगर आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट चाहे कैसा भी हो, आप उसे हमेशा सॉल्व कर पाओगे. सो इंग्लिश को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना है. एक, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज नॉलेज ऑफ वर्ड्स, राइट? इसके बेसिस पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए. सेकेंड, इंग्लिश में ग्रामर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? तो एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, ऐसी सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो ग्रामर पे होल्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्लैट 2020 के नज़रिए से देखूं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगर आपको कोई पैसेज दिया गया है तो उस पैसेज को कितनी जल्दी पढ़ सकते हो, कितने अच्छे से आप वो पैसेज को समझ सकते हो, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है. So, to get mastery over the English section, you must develop the habit of reading a lot. चाहे न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं, चाहे ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, चाहे मैगजीन्स हों, नॉवेल्स हों, नॉन फिक्शन बुक्स हों, लेकिन रोज 50 से 100 पेज पढ़ने की आदत डालो. जो स्टूडेंट्स एक्सटेंसिवली रीडिंग हैबिट्स रखते हैं उनकी रीडिंग स्पीड तेज है, their knowledge of words and understanding of concepts is higher, and they can easily crack the exams. Especially CLAT 2020 जैसा अगर फॉर्मेट निकला पेपर का, तो the entire paper requires you to be able to read and understand a lot of material. So English में जितनी ज़्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. सो वोकेबलरी को तेज करो, ग्रामर पे वर्क करो, एंड सबसे ज़्यादा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो. उसी से रिलेटेड आता है रीजनिंग.
ऑन वन हैंड हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन होगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूले, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ डायग्राम्स विल कम, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशंस, डायरेक्शंस, पजल्स, सिलोजिज्म्स, सीरीज एंड सो ऑन। लेकिन आजकल ज़्यादा एग्जाम्स क्रिटिकल रीजनिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, क्रिटिकल या वर्बल रीजनिंग, जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह आपको पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज पैसेज पर से अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो जो रीडिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा उसके लिए क्रिटिकल या वर्बल रीजनिंग का सेक्शन भी इजी हो जाएगा। तो जैसे मैं कहता हूँ, रीडिंग ना सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर रीजनिंग में आपको तेज़ होना है तो भी आपको रीडिंग हैबिट्स इंटेंसिव करनी ही पड़ेंगी। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं कि मैथ्स हमको नहीं आता। इनफैक्ट वन एक्सक्यूज फॉर गेटिंग इनटू लॉ इज आई डोंट वांट टू डू मैथ्स, सो आई वांट टू डू लॉ। बट प्लीज रिमेंबर, स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 10th से ज़्यादा का मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता, राइट? अगेन, फंडामेंटल्स को तेज करो, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो मैथ्स में आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो नंबर सिस्टम्स नाम के टॉपिक में किया जाता है, नंबर की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानो। उसके बाद एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड बेसिक लीनियर इक्वेशंस अगर आप सॉल्व करना जानते हो तो मोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज टेकन केयर। However, please don't neglect topics like mensuration, that is surface area and volume, and basics of geometry, because इस साल क्लैट में नाना कहते हुए भी उन्होंने majority of the questions mensuration पे ही बेस किया था। So basic calculations and properties of numbers को तेज करो, फंडामेंटल्स में एवरेजेस, परसेंटेजेस एंड रेशियोज को सीख लो, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना सीखो, मेंसुरेशन ज्योमेट्री के बेसिक सीख लो। मोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज टेकन केयर ऑफ। अब एग्जाम के अंदर चाहे उसको क्वांट के नाम से पूछें, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से पूछें, लेकिन मैथ्स के ये कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स हैं जिस पे अगर आप मास्टरी कर लोगे, आप कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैथ्स में इजीली सॉल्व कर पाओगे। जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज इम्पॉर्टेंट। कई सारे ऐप्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए डेली लेवल पे अपडेट्स देते हैं। ऐसे किसी ऐप को इंस्टॉल करो, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके रोज फॉलो करो, बट दिन में 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ करंट अफेयर्स करोगे, तभी जाके आप जीके एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन को क्रैक कर पाओगे। और अगर क्लैट 2020 की तरह ही ये सेक्शन रहा तो इसके अंदर पैसेज होगा, और पैसेज को अंडरस्टैंड करके उस टॉपिक के बारे में आपने जो एक्स्ट्रा रीडिंग किया है वो याद करके आपको आंसर करना पड़ेगा। सो एक्सटेंसिव रीडिंग विल बी इंपॉर्टेंट फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स एज वेल। फाइनली, लीगल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है उसमें आपको एक्चुअल लॉ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस सेक्शन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रीजनिंग, मोर स्पेसिफिकली वर्बल रीजनिंग। रीडिंग हैबिट्स अगर अच्छे हों, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अगर बढ़िया हों, तो किसी भी लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर वो स्पेसिफिक चीज़ें पूछते हैं जिसको लीगल अवेयरनेस कहा जाता है, जैसे कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, कोई पर्टिकुलर लॉ है। बट क्लैट को अगर देखें, इट मेनली फोकसेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज रिटन एंड एप्लीकेशन। तो जैसे हमने देखा, इंग्लिश का सेक्शन हो, रीजनिंग का सेक्शन हो, जीके का सेक्शन हो, लीगल का सेक्शन हो, इन चारों के लिए एक कॉमन चीज जो आपको करनी पड़ेगी इज रीडिंग। और मैंने यही देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अच्छे से रीडिंग हैबिट्स फॉर्म करते हैं वो ऐसे एग्जाम्स बड़ी आसानी से क्रैक कर देते हैं ना। डेली रूटीन के अंदर 45 मिनट्स to 1 hour you must devote to reading. It could be magazines, books, GK supplements, anything. Again, 45 minutes to 1 hour every day you should be devoting to reading specifically GK and current affairs sources, and 1 to 2 hours weekly if you practice for basic maths and reasoning. Then throughout the year
you will be able to manage this along with your 12th board studies, and you will be in a good position to be ready to crack examinations like the CLAT. बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद यूजुअली हमें महीना डेढ़ महीना टाइम मिलता है जिसमें हम ज़्यादा इंटेंसिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में स्कूल के साथ इतना टाइम अगर आप निकाल पाओ देन दैट वुड बी एन एक्सेलेंट थिंग टू स्टार्ट प्रिपरेशंस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक क्लैट. अब मॉक टेस्ट्स या प्रैक्टिस टेस्ट्स तभी जाके देना चालू करो जब आप मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लो. हर टेस्ट के बाद उस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. अब एनालिसिस का मतलब क्या है? पूरे पेपर में यू वुड हैव अटेम्प्ट, आपने जो भी अटेम्प्ट किया है उसमें से कुछ अटेम्प्ट आपके, कुछ आंसर्स आपके रॉन्ग होंगे. जो रॉन्ग आंसर्स हैं उसको एनालाइज करो कि ये रॉन्ग क्यों है. क्या आपने क्वेश्चन को समझने में गलती की, क्वेश्चन को सही समझा लेकिन गलत फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला सही था लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, या कैलकुलेशन भी सही था लेकिन एंड में गलत आंसर को मार्क किया. कहाँ पे गलती की? रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चंस पे ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. जो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, इन क्वेश्चंस का भी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को क्यों छोड़ा. क्या आपके पास इनफ टाइम नहीं था? क्या आपके पास टाइम था लेकिन क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए? या आपने सॉल्व तो किया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया इसलिए मार्क नहीं किया? तो जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क नहीं किया है उनका भी एनालिसिस ज़रूरी है. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस आपने सही मार्क किए उनका भी एनालिसिस ज़रूरी है. बिकॉज कई बार एग्जाम में हम गेस वर्क से, फ्लूक से आंसर सही मार्क कर देते हैं, लेकिन एनालिसिस के वक्त हम भूल जाते हैं कि हमने गेस वर्क किया था. और अगर हमने देखा है कि इसमें सही आंसर मार्क हुआ है तो हमें लगता है कि ये टॉपिक हमें आता है. राइट? सबसे बड़ी गलती यही है कि आपके लक पे डिपेंड करते हो आप. सो जो क्वेश्चन आपने करेक्टली मार्क किया, चेक करो क्या लक से आपका सही आंसर आया या प्रॉपर टेक्निक से आपने सॉल्व किया. प्रॉपर टेक्निक से ही सॉल्व किया हो तो भी चेक करो क्या पॉसिबल था कि इसी क्वेश्चन को आप कम समय में सॉल्व कर सकते थे. टेक्निक यूज किया, 45 सेकेंड्स में सॉल्व हुआ, लेकिन अगर एक ऐसा मेथड अवेलेबल है जो शायद 30 सेकेंड्स में उस क्वेश्चन का आंसर दे दे तो आप 15 सेकेंड बिल्कुल बचा सकते हो. सो इवन करेक्ट आंसर्स का एनालिसिस करना जरूरी है. सो दैट मीन्स एनालिसिस का मतलब है 100% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द पेपर मस्ट बी एनालाइज्ड बाय यू. प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद उसी मॉक को दोबारा 2-3 बार दो. हाँ, कई आंसर्स तो आपको जुबानी याद होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब तक उस एक पेपर के 100% क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाते तब तक अगला मॉक टेस्ट देना बेकार है. 5 मॉक टेस्ट दिए, प्रॉपर एनालिसिस किया, the benefits will be 100 times more than giving 50 mock tests but not doing analysis. Right? I have seen students जो 10-12 मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन एनालिसिस इतनी तेज करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के एक्चुअल रिजल्ट्स में उनके बड़े ही अच्छे नंबर आते हैं. और कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 15 अलग जगह से मॉक टेस्ट सोर्स करेंगे, दोस्तों से लेंगे, खरीदेंगे, 50, 100, 150 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन क्योंकि एनालिसिस प्रॉपर नहीं है, एवरी सिंगल मॉक वाज अ वेस्ट एंड उसमें से कोई बेनिफिट नहीं हुआ. So please, mock tests, and this is not only for mock tests, this is also for every single question that you do. क्लास में दिए गए एग्जाम्पल्स करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, ये सारी चीज़ों का 100% एनालिसिस ज़रूरी है. मैं 100 एग्जाम्पल्स करूंगा लेकिन हर एग्जाम्पल को मैं 10 बार करूंगा. 10,000 एग्जाम्पल्स ट्राई किए लेकिन एक एक बार किया और कोई एनालिसिस नहीं किया तो बेकार है. 100 एग्जाम्पल्स किए, हर एग्जाम्पल को 10 बार किया, अगर उस क्वेश्चन को कल जाके मैं किसी और को अच्छे से समझा सकता हूं तब जाके मानूंगा कि मैंने उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालाइज किया है. सो प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दिस सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे जैसे आप प्रॉपर एनालिसिस करते जाओगे, मॉक टेस्ट देते जाओगे, आपकी स्ट्रैटेजी बनती जाएगी. किस ऑर्डर में सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है. पहले जीके कर रहे हो तो अच्छा है, पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूं या ना करूं, मैथ्स को मैथ्स के सेक्शन से स्टार्ट करूं, मिडिल में करूं, एंड में करूं, किस सेक्शन में कितना टाइम दूं. अलग अलग मॉक्स में अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करके एनालाइज करो कि सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट किस स्ट्रैटेजी से आया. 2-3 बार उस स्ट्रैटेजी को रिपीट करके देखो कि क्या रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं. तो आपकी स्ट्रैटेजी को चेंज करके एनालिसिस जब करोगे तो फाइनली एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे आप रीच करोगे जो आपके काम आएगा.
बट याद रखो एग्जाम कैन थ्रो एनी सरप्राइजेस, सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, राइट? एक बेसिक स्ट्रैटेजी मन में होगी, लेकिन एग्जाम में अगर कोई भी चेंज हुआ देन आई शुड बी एबल टू अडेप्ट टू एनी न्यू चेंजेस इन द पेपर. So guys, this was my basic thing that I wanted to talk to you about. 2021 या 2022 में अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस या किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू हैव अ गुड स्टार्ट टू योर प्रिपरेशन. You can always subscribe to my channel here. You can follow all the videos that I keep posting about different topics relevant to most of the entrance exams. अगर कोई query हो तो आप डाल सकते हो. I will do my best to give an answer to that. So wish you all the best and have a good day.